Hello, welcome back. Assalamu alaikum. Sound testing. मेरी आवाज आ रही? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. We can listen to you clearly. Thank you. Sorry for long wait. आपको ज़्यादा देर इंतजार करना पड़ा। ये मुझे इंटरनेट इशू आ रहा है आज सुबह का, आई डोंट नो क्या वजह। तो I would like to continue the discourse analysis, some more about that. There was the issue of poem. Yeah, The meaning of the poem please. was it's still unsettled, I think. तो आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू दें। फाइनली पॉइंट ऑफ व्यू आप में से 3-4 लोगों का बहुत रेलेवेंट था। आप जरा रिपीट करें क्या बात आपने क्या की थी। ये नईमा रहमान ने इसी तरह कुछ 2-3 लोगों ने बड़ी रेलेवेंट बात की थी। हेलो, Assalamualaikum, sir. वालेकुम अस्सलाम। Sir, Akhtar Rashid here. Sir, I want to add. जी अक्सर बात करें। हेलो जी सर, वो म्यूट हो गया था। हाँ जी सर। Smoke. The word smoke also symbolizes the reality. The one speaker says, "I smoke." You don't smoke means I see the reality, and you don't see the reality. And the ashes in between you and me means that there is a smoke between you and me means there is some smoke screen that makes the another friend, another man, unable to see the reality. He says that I see the reality because I am suffering from the different pains. I have seen the reality of the world, but you don't see. You can't see because there is some smoke screen between you and the reality, and between you and I. That. दैट्स गुड। जी मोहम्मद हनीफ, आप कंक्लूडिंग रिमार्क्स दें ना। आपने बात पहले भी वैसे ठीक की थी, तो लेट्स कंक्लूड दिस। हेलो Sir, the text of the poem is not before us. And then for what? The text of the poem is, sir, the poem is invisible to us. Invisible to you. Should I present it again? Yes, sir. Let me. Is it visible now? Yes, sir. Okay. Please comment on it. What Sir, I was thinking that the poet sets up a contrast between between the speaker and the addressee. The speaker has fallen into the habit of smoking. On the other hand, the addressee has not embraced their habit of smoking. This was the meaning which occurred to my mind. It's fine, but what you perceive from only ashes and smoke when he is differentiating between addressee and himself. So words are very easy, but reaching the meaning is a big challenge. Yeah. I think so. We do have a comprehensive discussion on it. Many of Sir, yeah, please.
So, I'm Marinissa. I want to add something that in first three lines, the poet wants to differentiate between the two, him and the other one. He says that there is a lot of difference between them, but something which is seems similar between them is ashes and smoke. Means smoke which is to resolve after some time, and ashes means something which is at the end. Means ke both are totally different. Smoke and ash come them closer or make them a whole, but nothing is similar between them. They are responsible for their own deeds. Oh. But matlab every person in this world is responsible for his act, not the other one. Let me finish it now. We have detailed discussion on this poem. As this has been recorded in the video, and you can see it again, and you may have your commentary on it afterwards, after this class too. So let's move ahead for the next lesson. We wanted to discuss in regarding discourse analysis. One more point of view about discourse analysis here is that the starting points for discourse analysis are the basically, as in earlier slides, I have been talking about that it's a research methodology, and that falls under the approach of qualitative on the basis of philosophy of pragmatism. It deals with the talk and written test, as earlier we have taken different examples from the previous slides. And what the objective behind is to collect information through language material, through talking and written text. And most probably, this is the evidence from social phenomena beyond the individuals. One thing you are familiar, I think so, about the transcription. आप सब ये जानते हैं कि जब आप इंटरव्यू कंडक्ट करते हैं, आप रिकॉर्ड करते हैं, नोट भी कर रहे होते हैं और वॉच भी कर रहे होते हैं, वीडियो भी बना रहे होते हैं. फिर जब आप वन से कंप्लीट उसको कर लेते हो तो उसको ट्रांसक्राइब करते हो, और ट्रांसक्राइब करते हुए मेरा ख्याल है उसकी जो तमाम तरह के जेस्चर्स हैं उनको भी कंसिडर किया जाता है. तो बेसिकली जो इंटरव्यू है वो टॉक है. टॉक को आप टेक्स्ट में लेके जा रहे होते हैं, दैट इज नोन एज द ट्रांसक्रिप्शन. तो ट्रांसक्रिप्शन नोटेशन में जो मेजर फीचर्स इससे रिगार्ड हैं वो हैं रिपीटेड वर्ड्स, एम्फेसिस, इंटोनेशन. तो यू नो रिपीटेड वर्ड्स हैव सम सर्टेन मीनिंग्स. जब कोई रिपीटेडली एक बात को करता है, फोकस कर रहा होता है, तो इसका मतलब है वहाँ पे वो कुछ सर्टेन पॉइंट ऑफ व्यू को डिस्कस करने की बात कर रहे हैं और उसको एम्फेसाइज हम करते हैं. जिस तरह मेरा लेक्चर भी बेसिकली टॉक में ही आता है. अगर हम नोट टेकिंग कर रहे हैं और साथ साथ जिस तरह समटाइम्स मैं कहता हूँ कि आप मेरी फोकस और एम्फेसिस को केयर करें, और जहाँ ज़्यादा एम्फसाइज कर रहा हूँ आप उसको इस तरह ध्यान में रखें कि माइट भी वो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. तो अब ये तो मैंने आपको कॉन्टेक्स्ट बता दिया अपनी रिपीटिशन ऑफ वर्ड्स का और एम्फेसिस का, कि जब मैं फोकस कर रहा हूँ तो क्या उसके मीनिंग क्या होंगे. इस कॉन्टेक्स्ट को जहन में रखते हुए अब आप कंटेंट की तरफ आते हैं कि जो बात जिस फिनोमेना पे, जिस थ्योरी पे या किसी सर्टेन डिस्क्रिप्शन पे फोकस कर रहा हूँ, तो व्हाट मीन्स दैट. तो आपके बैक माइंड में वही बात चलनी चाहिए जो मैंने एक दफ़ा कह दी कि जी इसको एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मैं जब मेरे जहन में कुछ होता है तो मैं बात क्यों कर रहा होता हूँ. ये इट इज़ वन फेसेट, बट देयर मस्ट बी सम सर्टेन अदर. हो सकता है उस बात को इन डेप्थ डिस्क्राइब करने के लिए भी मैं उतनी ही एफर्ट कर रहा हूँ. सो बेस्ट नोन सिस्टम बाय राइल जेफरसन ऑफन रिवाइज्ड. ये बंदा इससे जो रिपीटेड वर्ड्स के बारे में इसकी जो नोशन है उसको वो कहता है कि जो इसमें प्लेसेस, रेजिडेंस, प्लेसेस ऑफ
residents. Some possibilities of discourse analysis. Address the details. तो डिस्कोर्स हम इसलिए भी करते हैं कि डिटेल्स में उसको जानने के लिए। तो आपको पता है कि रिसर्चर का काम यही है कि वो बाल की खाल उतारता है, इन डेप्थ उसको उसके सारे उसके जो टीयर्स हैं उनको अनफोल्ड करना है और डेप्थ में जाके देखना है कि नीड क्या है और पहुंचना कहाँ चाह रहे हैं। सहाफ़ियों का बेसिकली आपने स्टाइल देखा होगा कि वो लाइंस और मीनिंग्स, बिटवीन द लाइंस कुछ मीनिंग निकालते हैं, वर्ड्स जो वो खुद चाह रहे हैं एक तो वो स्पीकर के मुंह में डाल देते हैं और स्पीकर के किसी एक वर्ड को वो इस तरह ले जाते हैं कि एक शाह सुखी बन जाती है। इंटरव्यू ट्रांसक्रिप्ट्स, जो पीछे मैंने बात की ट्रांसक्राइब करने की। एक्सट्रैक्ट इंटरव्यू का एक क्वेश्चन ये आप देखें, राइट। सो एक एग्जांपल आपके सामने आ रही है, राइट। सो व्हाट डू यू वैल्यू मोस्ट देन अबाउट वेयर यू लिव नाउ। दिस इज द क्वेश्चन फ्रॉम इंटरव्यूई। नाउ इंटरव्यूअर, तो इंटरव्यू जो है वो आंसर दे रहा है, लिविंग है नाउ सम सेफ, आई मीन सेफ्टी इज एक्चुअली important. Although we are living in London, we are quite here in particular, we are very close to the river, we have got lots of parks. आगे देखें, फिर ये चादर देना, फिर वो it is built up, but it's quite, but there is quite a bit of space around, I think, from that point of view of living in Agenam area. We are very fortunate to have lots of royal parks, and we are very close to the river as well. It's close to central London, so that should we want to use museums and theaters, etc., we can do that. तो ये स्टाइल है इंटरव्यू देने वाले का कि वो किस तरह से जी हनीफ। Sir, if we just transcribe the interview without editing, sometimes one repeats one sentence or part of sentence 3 times, and then one complete sentence. If we just transcribe it without editing, I think it will be very, very difficult for readers to, comprehend what is written on the page. You are very right, but as a researcher, we have to transcribe it as it was stated by the reviewee. एडिटिंग करके जो उसकी रिपीटेशन अगर आप ख़त्म करेंगे तो एक्चुअल चीज़ नहीं रह जाएगी। अब जब इसको एक्चुअल में आपने एज इट लिख लिया, अब यहाँ से आपने एक्सट्रैक्ट निकालना है इसके मीनिंग। इस पूरे पैराग्राफ में से एक सेंटेंस निकलेगा जो आगे जाके हम अगली स्लाइड पे देख सकते हैं कि वो क्या है। तो All right, sir, got the point. हाँ, थैंक यू। सो अब यहीं आप देखें, मैंने अंडरलाइन की हैं कुछ चीज़ें। दीज आर द की वर्ड्स जो हम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं उसके इस पूरे 4-5 सेंटेंसेस में से या इस पैराग्राफ में से, कि मेजर जो उसका कंसर्न है बात करने का वो सेफ है, सेफ्टी है, क्लोजर टू द रिवर है, लॉट्स ऑफ पार्क्स है, स्पेस, रॉयल पार्क्स, सेंट्रल लंदन, म्यूजियम्स, थिएटर्स। तो दैट मीन जो अपने वो वहाँ रहने की इम्पोर्टेंस या जो उसको हाईलाइट करना चाह रहा है उसके बेनिफिट्स को, वो ये की पॉइंट्स हैं जिनकी बुनियाद पर वो वहाँ रह रहा है। अब बाकी बात जो सारी उसने वो उसके डिफरेंट जेस्चर्स हैं, जिस तरह हम खड़े होते बात करते, इवन क्लास में लेक्चर के दौरान या अदरवाइज कोई इंटरव्यू देते हुए ऐसे हाथ का जेस्चर देना, फेस का जेस्चर देना, बॉडी जेस्चर देना, बॉडी लैंग्वेज भी हम कहते हैं ना, तो फेस रीडिंग साथ साथ आ रही होती है। तो एक्चुअल जो एक्सट्रैक्ट उसकी गुफ्तगू का है वो यहाँ है। तो रिसर्चर के काम की ये चीज़ है जो उसने डिस्कोर्स की है उसकी अंडरस्टैंडिंग से कि वो कहना क्या चाह रहे थे।
So findings from the analysis in your previous patterns in the data, यानी एनालिसिस से जो हम फाइंडिंग करते हैं वो हम एक पैटर्न सेट करते हैं, क्या पैटर्न्स बन रहे हैं, डिस्कोर्सेस, इंटरप्रेटिव, repertoires, recursive resources, references to possibilities and what you can do. So अगर हम जिस तरह पिछले पैरा में से क्वेश्चन के जवाब में हमने देखा कि कुछ की पॉइंट्स हमें मिले जिसकी बुनियाद पर, दैट वाज आवर डिस्कोर्स बेसिकली। एनालिसिस के जवाब में हमने देखा कि वो क्या कहना चाह रहे थे और उसको हम एज इट इंटरप्रेट कर सकते हैं, अपने इंफॉर्मेशन में लेके आ सकते हैं टुवर्ड्स आवर रिसर्च ऑब्जेक्टिव। अभी सेकंड क्वेश्चन उससे किया जाता है, सो व्हाट डू यू वैल्यू मोस्ट अबाउट वेयर यू आर लिविंग नाउ, कैन यू say that variety of things that available, that environment is just everything so easy. हाँ, तो अब उसका दूसरा सवाल देखें। It's a very of things that are available in the environment. It's just everything is so easy to get to from there, and any kind of resources that I might need to have are very easily obtainable there, either from going to shops, getting places to bring stuff to us, or finding information as well. अब जो भी information जो होंगी उनके नाम is a whole huge market area with kind of fashion and art and theater, and there is so much there you know that's interesting to you. You can just kind of have a look around it, kind of feels as if you are in touch with आप ये समझ रहे हैं ना बातें, जो रिपीटिशन भी हो रही है, जो कैन किस तरह से वो अपना, तो ये ट्रू वर्ड्स हैं ऑलमोस्ट यहाँ पे राइट अप में टेक्स्ट की शक्ल में उसके जेस्चर्स भी शो हो रहे हैं। जब वो बार बार एक बात को कह रहा था, यानी लाइक इन टच विद जब विद तो साथ अल्टीमेटली कोई उसकी हैंड रेज भी, कोई नोडिंग हुई होगी, किसी तरफ देखा भी होगा, गोइंग ऑन देयर, वेयर एज other places I have lived have felt a bit kind of semi high street stuff and nothing kind of I do not यानी रुकना है फिर वो हम कर रहे हैं, वो आप बेहतर समझते हैं, आप क्योंकि लिंग्विस्टिक्स के लोग हैं। सो ये एक लंबा सा पैराग्राफ उसकी गुफ्तगू का हमें मिल गया, जो उसने कहा एज इट आपने विदाउट एडिटिंग कर दिया। अब एज ए रिसर्चर यहाँ से हमें क्या लेना है, हमें एक्सट्रैक्ट करना है कि उसका मैसेज क्या था यहाँ पे। तो आप देखें ये कुछ वर्ड्स जो हैं अंडरलाइन हो रहे हैं, जिसकी बुनियाद पर हम बता सकते हैं, एक रिसर्चर का ये काम है कि अब वो यहाँ कर रहा है डिस्कोर्स इसका, उसकी गुफ्तगू का, कि उसको क्या 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 पॉइंट्स यहाँ हाईलाइट उसने किए हैं। तो लाइकली आप देखें अवेलेबिलिटी ऑफ एवरीथिंग, यहाँ रहने का उसको फायदा क्या है कि उसके सराउंडिंग में बहुत सारी चीजें अवेलेबल हैं। रिसोर्सेज easily obtainable, whole huge market of the area, fashion, art and theater, so much there. You can have a look, feels you are touching with what's going on, individuality. अब इन कीवर्ड्स को इकट्ठा करके जब हम एक सेंटेंस बनाएंगे तो ये है हमारी एडिटिंग, और एकेडमिकली उसमें से जो मीनिंगफुल सेंटेंस हमारा निकलना है, दैट इज द एक्सट्रैक्ट ऑफ दिस हिज आंसर। तो ये कमाल है रिसर्चर का कि वो डिस्कोर्स एनालिसिस करते हुए किसी की बात को, जिसका इंटरव्यू कर रहा है, उसकी लंबी चौड़ी बात से एक्चुअल क्या निकालता है। यही मेरा ख्याल है ये सहाफ़ी लोग सबसे अच्छा डिस्कोर्स एनालिसिस करते हैं, या दे आर फ्लुएंट ऑन डूइंग डिस्कोर्सेस। आगे चलते हैं। assumptions
डिस्कोर्स एनालिसिस से क्या हम अज्यूम करते हैं, सिलेक्टिव डिस्क्रिप्शन होती है, शेप्ड ऑफ पर्पस फंक्शन है, स्पीकिंग एज अ सर्टन पर्सन, पोजीशनिंग, पार्शली रिहर्स्ड वर्जन। तो टॉक इज सोशल, पहले था टेक्स्ट, अब हम टॉक की तरफ आते हैं। टॉक इज सोशल because it is shaped by shared resources. It is situated in contexts. It's a social practice. So places of residence, possible material for discourse analysis are address details, interviews, naturally occurring talk, for example, mediation session. अब हम देखते हैं कि जो मीडिएट बीच में करते हैं, मीडिएशन इनिशियल इंटरव्यू का एक्सट्रैक्ट कैसे हम कर सकते हैं। आप sentences देखेंगे, नंबरिंग की हुई है 1 to 10। That's how it is। नीचे इसका रेफरेंस है, ये एलिजाबेथ स्टोके की बुक है, 2003 में छपी, जिन्होंने डिस्कोर्स एनालिसिस पे मीडिएशन ऑफ इनिशियल इंटरव्यूज के बारे में लिखा हुआ है। You know, it's getting real serious, that is, but the lad keeps getting away with it. Unfortunately, his mother has not got a look there। तो ये उसकी टॉक है, उसकी गुफ्तगू है, जहाँ वो रुक रहा है वहाँ आप देखो विदिन ब्रैकेट फुल स्टॉप लग रहा है, पाज ले रहा है तो वहाँ पे हाइफन आ रहा है, और वो वॉच करते हुए, उसकी टॉक को देखते हुए अकॉर्डिंग उसको ट्रांसक्राइब किया है एज इट इज। अब इस ट्रांसक्रिप्शन से फिर मीनिंग आगे निकलेंगे, थीम डेवलप होगा। मजेदारी की बात है, इसलिए कहते हैं कि जो क्वालिटेटिव रिसर्च, जब आप इंटरव्यू ले रहे हो, आपने ट्रांसक्राइब करने हो, तो कोई सर्टन नंबर नहीं एडवाइस किया जाता किसी भी बड़े ऑथर्स की तरफ से कि इतने इंटरव्यू आप लाजमी करें तो आपकी रिसर्च कंडक्ट हो जाएगी। तो इसमें यानी जो हम सैंपल साइज लेते हैं, उसको पहले से प्री डिटर्मिन नहीं करते कि आपने 100 लोगों का इंटरव्यू करना है, 50 का करना है। बेसिकली कहा यह जाता है कि इंटरव्यू टिल द टाइम ऑफ सैचुरेशन चलेगा। सैचुरेशन कब होती है? जब लोगों की बातें रिपीट होना शुरू हो जाएं। तो वो हम एक ब्रॉडन स्पैम से नैरो डाउन स्पैम की तरफ चलते हैं, और हमारे पास थीम्स डेवलप होना शुरू हो जाते हैं, और एक थीम पे कई तरह की बातें आ रही होती हैं। उन्हीं बातों से ये थीम डेवलप करके जो 5 से 7 तक ऑलमोस्ट होते हैं, बड़ी वाइडर कंडीशन में ये 9 या 11 हो सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं होते। तो ये खूबसूरती है इस रिसर्च की कि इसमें आपने सैचुरेशन तक काम करना होता है। वो 5-7 से भी हो सकती है और 12-15 से भी हो सकती है। मोस्ट प्रोबेबली सैचुरेशन जो है विदिन 20 इंटरव्यूज शुरू हो जाती है, इससे ऊपर नहीं जाते। तो फाइंडिंग्स of initial talk extraction, complaints about the neighbors are generated, categorization of women in mortal terms। इसका जो एक्सट्रैक्ट करके उसने हमें आगे फाइंडिंग्स दी हैं वो ये हैं। अगर हम प्रेमिसेस के कॉन्टेक्स्ट में देखना चाहें तो सोसाइटी इज कंस्टिट्यूटेड थ्रू ऑनगोइंग प्रैक्टिसेस मेड एंड रीमेड, talk as a social practice, and categorization of women as a form of talk which reinforces a gendered social order। तो ये प्रेमिसेस है। अब देखते हैं कि व्हाट इज डिस्कोर्स एनालिसिस इन द टर्म्स ऑफ premises। The study of well established meanings or ideas around a topic
which shape how we can talk about it. तो ये उसी तरह जिस तरह प्रीवियसली हमने डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिस्कोर्स एनालिसिस पढ़े थे, उसमें वन ऑफ देम है कि ये वेल एस्टेब्लिश्ड मीनिंग आइडियाज अराउंड द टॉपिक हमें देती है, जिससे हम शेप करते हैं किसी टॉक को. फॉर एग्जांपल डिस्कोर्सेज ऑफ एजुकेशन, डिस्कोर्सेज ऑफ हेल्थ एंड इलनेस, डिस्कोर्सेज ऑफ प्लेस. पॉसिबल प्रॉब्लम्स जिनके रिसर्च प्रॉब्लम जिनके लिए हम डिस्कोर्स करते हैं वो टू स्टैटिक होती हैं. सो द स्टडी of how meanings are established, used, challenged and changed, including a talk. The study of how meanings are established, used, challenged and changed, इसके फर्दर जो कंपोनेंट्स अगर हम देखें तो ओवर द टाइम मीनिंग्स जो हैं वो चेंज होते हैं, एस्टेब्लिश होते हैं, चैलेंज होते हैं. फॉर एग्जांपल कल मैं एक टॉक सुन रहा था किसी सहाफ़ी की. उससे किसी ने क्वेश्चन किया कि लॉकडाउन का नाम तो सुना है, ये स्मार्ट लॉकडाउन क्या होता है, क्या ये कोई नई टर्म डिक्शनरी में आ गई है? तो उन्होंने डिफरेंट एग्जांपल्स दी. हम सब आगाह हैं कि गुल्लू बट जो है ये डिक्शनरी का लफ्ज़ नहीं था, लेकिन अगर आप देखें तो अब इसको सेंसिटाइज करके हिस्सा बना दिया गया है. सो ओवर द टाइम डिफरेंट जेनोलॉजिकल स्टडी फोकस्ड हैं वो इनको इंक्लूड कर लेते हैं डिफरेंट टॉक्स को. अब आप देखेंगे आने वाले वक्तों में वेरी शॉर्टली स्मार्ट लॉकडाउन भी एक वेल रिनाउंड टर्म के तौर पर इस्तेमाल होना शुरू हो जाएगी. इन ऑर्डिनरी लाइफ डिस्कोर्स प्रैक्टिसेस होती हैं. समरी व्हाट डिस्कोर्स एनालिसिस, इसकी डेफिनेशंस हम पहले कर चुके हैं. देख लेते हैं कि डिस्कोर्स एनालिसिस हम क्यों करते हैं. To understand our social words and their complexity, to understand the implications of certain meanings and word views, to understand ourselves within our social words. Earlier we have also gone through this slide, what kinds of data the researcher collect through discourse analysis, that is the language data, written, spoken, found and collected. Other kinds of evidence are the images, behavior, situations, found, collected. Criticism भी हमने इस पे देखा क्यों करते हैं, और that's all about the discourse. Today in the sessions, I think so, we have deeply talked about the discourse analysis. I am not going to assign any task or any discussion board today. You are free, no assignment, no discussion board, but you yourself should go through this presentation and slides I have earlier uploaded on CMS in the course resources, and just think that where and when and on what terminology and what types of descriptions I have influenced much, and memorize that, write that. हो सकता है आपको वो कल किसी काम आए. It's open to you now. I allow you to unmute your mics. You may go ahead for any discussion, posing question, asking question. आप खुद से कोई कमेंट कर सकते हैं, कोई अदरवाइज क्वेश्चन पूछ सकते हैं, कोई अपना प्रॉब्लम है वो शेयर कर सकते हैं. It's up to you now. जी मारिया मकसूद, you can unmute your mic. Yes, sir. सर मुझे थोड़ा सा इस
पे बात करनी थी, डिस्कोर्स एनालिसिस पे। जैसे भी आपने थोड़ी देर पहले जर्नलिज्म के हवाले से बात की, लाइक हाँ। ब्लू बर्ड का जो आपने एक वो ऐड किया, यस। तो सर मुझे ये पूछना था लाइक कि किस तरह से एक जो है, फॉर एग्जांपल हमें एक स्पीच का एनालिसिस करना है, डिस्कोर्स एनालिसिस करना है। लेट्स सपोज के वो स्पीच हुई है इन, लाइक आप कायद आजम की स्पीच कर लें जो कि 19 पहले हुई है, तो 1936 कर लें या कुछ भी। तो सर उसको हम लोग जब एनालाइज करेंगे तो हमें क्या मतलब उसे ये कहते हैं, पहले हमें उसके बैकग्राउंड पे जाना होगा। लाइक मैं सीक्वेंस पूछ रही हूँ आपसे, अगर मतलब मैं ठीक हूँ तो मुझे बताइएगा। पहले हम बैकग्राउंड उसका चेक करेंगे और देन वी विल लाइक रीड आउट द होल स्पीच ऑफ दैट पर्सन। और उसके बाद सर हम उसे क्या कहते हैं, जैसे भी आपने थोड़ी देर पहले अंडरलाइन किए वो वर्ड के इस इन वर्ड्स के ऊपर जो था वो फोकस था। अब वो फोकस रिसर्चर का है या फिर हम उस सिनेरियो से देखते हैं कि जो बोलने वाला बंदा है उसने किस लफ्ज को स्ट्रेस आउट किया हुआ है, यानी कि हम किस तरह से देखते हैं, मुझे ये थोड़ा सा समझा दें ठीक। कि मतलब क्या रिसर्चर की इंटरप्रिटेशन सिर्फ होती है या मतलब जब हम दूसरे बंदे को सुन रहे होते हैं तो वो भी नहीं देखते पता हैं कि दफा हो गई है भाई। व्हाट। सुभान अल्लाह। ये शाजिया लतीफ बच्चों को दफा अलग करें ना, अपना म्यूट करके। हमें ना सुनाए आप उन्हें क्या गालियां निकाल दी उधर। अच्छा जी, बात ये हो रही थी कि यस सर। बैकग्राउंड में जाना पड़ेगा। उस एग्जांपल जिसका अंडरलाइन करने का आपने अभी हवाला दिया है, यस सर। बैकग्राउंड में हम आई थिंक सो नहीं जाते। मैं अलग से जवाब ओके दूंगा कायद-ए-आज़म की स्पीच के क्वेश्चन का। ओके सर। एज ए रिसर्चर हमने एक रिसर्च प्रपोजल बनाया, यस सर। उसमें हमने एक रिसर्च ऑब्जेक्टिव रखा। यस सर। उस रिसर्च ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए हमने कोई हाइपोथेसिस रखा। अब हाइपोथेसिस टेस्ट करने के लिए हमें डाटा चाहिए। वो डाटा कलेक्ट करने के लिए हमें कोई रिसर्च टूल यूज करना है। इंटरव्यू करना, इंटरव्यू जो है वन ऑफ द रिसर्च टूल है। यस सर। अब आपको पहुंचना ये है किसी के बारे में कि जी उससे आपने इंफॉर्मेशन लेनी है अपने रिसर्च ऑब्जेक्टिव को मीट करने के लिए। फॉर एग्जांपल, आप ये देखना चाहते हैं कि डिफरेंट रिसर्चर्स जो हैं वो एट द लेवल ऑफ नोबेल प्राइज कैसे पहुंच जाते हैं, लोगों को यस सर। रिसर्च की बुनियाद पर नोबेल प्राइज कैसे मिलता है। तो आप उनके इंटरव्यू करें, फर्ज करें, और अपने इंटरव्यू में वो आप डिफरेंट क्वेश्चन पोज करेंगे जो वो अहाता करेंगे, उन चीज़ों को कवर करेंगे जो आपकी नीड है। ठीक है। ओके अब वो स्टैंडर्ड्स आपने तय किए हुए हैं, उस बंदे को नहीं पता जिसको आप रिसर्च कर रहे हो। आपको पता है कि ये मेरे इंडिकेटर्स हैं, ये मीट हो रहे होंगे, इनकी इंफॉर्मेशन मुझे मिल जाएगी, तो मेरे सवाल का जवाब मिल जाएगा कि क्या क्राइटेरियन है और लोग कैसे नोबेल प्राइज जो है वो मीट करते हैं। अब इंटरव्यूअर ने तो एट योर ईज एंड एट हिज ओन ईज उसने अपनी कहानी सुनानी है। आपने सवाल पूछना, उसने जवाब देते जाना है। उसको नहीं पता आपने एक्सट्रैक्ट उसमें से कैसे करना है और क्या करना है, ये आपका काम है। तो वो एक सर्टन अपनी स्टोरी सुनाना शुरू कर देते हैं। फर्ज करें कि पाकिस्तान के अंदर बात हम करें कि जो एटम बम है, वो उसकी स्टोरी आप डॉक्टर कदीर से सुनना शुरू करें तो एक्चुअली जानना है किस स्टोरी किस तरह से ये अचीवमेंट हुई। तो वो पूरी स्टोरी सुनाता है कि जी मुझे हॉलैंड में अपॉइंटमेंट थी, ये चीज़ मिली, ये असाइनमेंट मिली, ये ऐसे हुआ ऐसे हुआ, वो जो डिप्लोमेटिक बैग था उसमें चीज़ें आती थी, फलां चेक करता था, फलां नहीं करता था, ब्ला 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 ब्ला। अब वो सारी स्टोरी आपके सवाल का जवाब नहीं है। उसमें से वो चीज़ें जो आपको चाहिए आपने हाईलाइट करनी है कि मेरे जो इंडिकेटर्स हैं उनको मीट करने के लिए
ये बातें मुझे सूट कर रही हैं। जिस तरह अभी ये सवाल था इनको कि आप उस एरिया में क्यों रहते हैं, तो उसने कहा जी यहाँ सिनेमाज हैं, म्यूजियम है, थिएटर हैं, सेंट्रल मार्केट है, इजी एक्सेस है, अप्रोच है, यस सर। शॉपिंग मॉल्स हैं, तो मुझे वहाँ से आसानी से ये सारा कुछ, दैट मीन कि उसकी जो यूटिलिटीज़ हैं तमाम उसकी सोशल लाइफ को मीट करने के लिए वो उसे आसानी से अवेलेबल है, तो वो इसलिए वहाँ रहता है। सवाल तो आपका सिर्फ ये था कि ओके। आप वहाँ क्यों रहते हैं। अब आपका अल्टीरियर मोटिव सिर्फ ये जानना था कि वो सेंट्रल लंदन इतना महंगा इलाका है तो उसमें रहने को क्यों पसंद करता है, क्यों किसी सबर्ब में नहीं रह लेते। फॉर एग्जांपल अगर ये मोटिव था तो जो उसने सारी बातें बता दी वो तो आपका मोटिव नहीं था। आपने वो चीज़ें हाईलाइट करनी है जो उसके करक्स हैं, जो लीड करते हैं टूवर्ड्स, और वो जो 5-6 पॉइंट अंडरलाइन हमने किए वो एक बड़ा क्लियर कट मैसेज देते हैं कि सेंट्रल लंदन में रहने की वजह में यस सर। ये होती है कि लोगों को वो मेजर फैसिलिटीज अवेल हो जाती है। ये तो है रिसर्च प्रोसेस। ओके। अब आ जाते हैं बात प्रीवियस स्पीच पे। इस स्पीच सुनकर के आपने डिस्कोर्स कर, यस सर। अगर मैं आपसे ये कहूँ कि जो फर्स्ट एजुकेशन कॉन्फ्रेंस थी 1948 में, कायद आज़म ने उसमें स्पीच किया और उन्होंने कहा कि हम हम लाजमी रखेंगे कि टीचर जो हैं वो लाइसेंस हासिल करें। अब ये प्रीवियस डेकेड्स में लोगों को सारी वो समझ ही नहीं आई कि ये टीचर का लाइसेंस होता क्या लाइसेंस है। मतलब मैं अपना, मेरा एक एक्सपीरियंस है, मेरा फील्ड है, तो हमें इन बातों का तब पता चला जब हमने उस ट्रेनिंग और यस सर। उन चीज़ों को इन डेप्थ समझने की कोशिश की और पढ़ा। तो एक लॉन्ग रीडिंग उसके पीछे है, पता चलता है कि अच्छा लाइसेंस, टीचिंग लाइसेंस किस चीज़ का नाम है। अब वो उस सिनेरियो को मैं नहीं समझूंगा या मैं नहीं कोशिश करूंगा कि वो क्या ग्राउंड्स थी कि कायद आज़म ने वो क्यों कहा, क्योंकि उस उनके कहने से जो पहले वाला सिनेरियो बैकग्राउंड है वो तो मुझे उस कदर फायदा नहीं देगा। मुझे उनके वर्ड्स के मीनिंग देखने के कंटेक्स्ट क्या है, किस कंटेक्स्ट में ये बात कर रहे हैं। बात समझ आ रही है? टॉक का जो कंटेंट है उसका सर आपकी कंटेक्स्ट। आवाज़ थोड़ी शॉर्ट हो रही थी लेकिन मुझे अब बात समझ हेलो आ हेलो हेलो, Yes, sir, your voice is quite clear, sir. अभी क्लियर है। तो वो कंटेक्स्ट देखना था, किस कंटेक्स्ट में उन्होंने वो बात की। तो जिस तरह हम देखते हैं कि मेडिकल के लोग हैं, इंजीनियरिंग के लोग हैं, लॉयर हैं, इनकी डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं जहां से वो एक सर्टिफिकेट लेते हैं, लाइसेंस लेते हैं, तो फिर प्रैक्टिशनर बनते हैं। लॉयर जो हैं वो बार काउंसिल से लाइसेंस लेते हैं, फिर प्रैक्टिशनर बनते हैं। इंजीनियर जो हैं वो पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल से लेते हैं। मेडिकल वाले उनकी अपनी ऑर्गेनाइजेशंस है। तो सिमिलर उनका जो थाट था वो ये था कि टीचर भी हर कोई ऐसे ना बन सके, वो एक सर्टन ट्रेनिंग में से गुजरे और फिर